let us discuss exercise 1.2. In that we shall discuss about the symmetric matrix. Now first, what is a symmetric matrix? There are two definitions of symmetric matrix given. First, a square matrix A is equal to Aij said to be symmetric if Aij is equal to Abi. इसका मीनिंग है हमारे पास Aij is equal to Abi. So from here we can write ith, jth element of A is equal to jith element of A. Now here I can write ith, jth element of A ट्रांसपोज. अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे यहाँ पर आके अपना पड़ेगा ट्रांसपोज. From here ith, jth element of A and ith, jth element of A transpose, so we will get A is equal to A transpose. So from here only we will get the second definition, that a square matrix is said to be symmetric if A is equal to your A transpose. Now there are examples of symmetric matrix 1, 2, 2, 4, AHG, HBF, GFC. इसमें क्या होता है, हमारे पास ये वाला जो एलिमेंट है इसकी इक्वल, जैसे A सपोज मुझे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है तो ये A B C मैंने डायगोनल एलिमेंट्स लिख लिए. यहाँ H लिखूंगी तो यहाँ H, यहाँ F तो यहाँ F, यहाँ G तो यहाँ G. तो इस टाइप के हमारे पास जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है. तो लेट अस टॉक अबाउट द डायगोनल एलिमेंट कि हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के. सो वी हैव द कंडीशन Aij is equal to Abi. So for diagonal elements I is equal to j, suppose A11, A1, A22, A33 ये मैट्रिक्स है तो यही एलिमेंट्स डायगोनल होते हैं. डायगोनल में क्या होता है, i और j जो है वो इक्वल होते हैं. I is equal to j, so from here I get Aii is equal to Aii means diagonal elements can be arbitrary. ऐसा कोई कंडीशन जो हमारे पास वेरीफाई नहीं हो रही, diagonal elements can be arbitrary. So next we have the two definitions of the symmetric matrix are equivalent. क्या हमारे पास जो दो डेफिनेशन है ये इक्विवेलेंट है. Now first let us suppose that हम फर्स्ट डेफिनेशन लेके चलते हैं and we are proving the second definition. Let us suppose Aij is equal to Aji. Now we have to prove that A is equal to A transpose. Prove A is equal to A transpose. Now consider ith, jth element of A transpose. So it is equal to jith element of A. अब मुझे A लिखना है तो ट्रांसपोज यहाँ पे एलिमेंट जो है रिवर्स हो जाएंगे. So jith element of A, that is equal to Aji, and we have taken that Aji is equal to Aij for every I and j. So from here I get this is equal to Aij means ith, jth element of A. So ith, jth element of A transpose is equal to ith, jth element of A. So from here we will get A transpose is equal to A. This is the first condition. Now from definition number 2. Now let us suppose that A is equal to A transpose and we have to prove that Aij is equal to Aji. So now consider ith, देखिए A is equal to A transpose means ith, jth element of A is equal to ith, jth element of A transpose. So from here we can write जो ith, jth element of A transpose that will be equal to jith element of A. So देखिए ith, jth element of A is equal to jth element of A means ith, jth element of A is equal to jith element of A. तो ये हमें क्या करना था, प्रूव करना. Now let us see the definition of skew symmetric matrix. Skew symmetric में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा हमारे पास. Skew symmetric में बस क्या डिफरेंस आएगा, a square matrix is said to be skew symmetric if Aij is equal to a minus of Aji. बस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का साइन आ जाएगा. A is equal to minus A transpose. तो उसके एग्जांपल्स हमारे पास क्या आएंगे, देखिए. सपोज आपके बुक में यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं 0 2 -2 2 0. नेक्स्ट हमारे पास है 0HG -H0G सॉरी F -F -G -F0. तो ये दो एग्जांपल्स आपकी बुक में मैंने लिखे हैं.
एलिमेंट्स कर दो ये प्लस, डायगोनल एलिमेंट्स 0 ये एच है तो माइनस एच, जी है तो माइनस जी, एफ है तो माइनस एफ। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेट अस सी यहाँ पे ith jth एलिमेंट जो है वो हमारे पास माइनस ऑफ aj आ गया, मींस ith jth एलिमेंट ऑफ a इज इक्वल टू माइनस ऑफ aj, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ith jth एलिमेंट ऑफ a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ith jth एलिमेंट ऑफ a ट्रांसपोज। तो यहाँ से हमारे पास ऐसी डेफिनेशन आ जाती है कि a जो है हमारे पास माइनस a ट्रांसपोज के इक्वल है। इसके डायगोनल एलिमेंट्स डिस्कस करने से पहले हम उनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर इक्विवेलेंट। लेट अस सपोज कि हमारे पास जो फर्स्ट डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग aj इज इक्वल टू माइनस ऑफ aj, बस सेम प्रूफ है, बस आपको माइनस लगाना है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज माइनस ऑफ दिस। सो ith jth एलिमेंट ऑफ a ट्रांसपोज कंसीडर करते हैं। ith jth एलिमेंट ऑफ a ट्रांसपोज कंसीडर कर लिया, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है माइनस ऑफ jith एलिमेंट ऑफ a। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा aj, तो aj हमारे पास किसके इक्वल है माइनस ऑफ aij, तो यहाँ माइनस ऑफ aij, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ से क्या आ जाता है हमारे पास ये किसके इक्वल है माइनस ऑफ दिस। So therefore the definition is correct. Now let us suppose कि a is equal to minus of f transpose, हमें proof करना है कि aij is minus of aj। Now ith jth element of a is equal to minus of ith jth element of a transpose, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। So ith jth element of a is equal to minus of a jth element of a, यहाँ ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब इसके डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए फॉर डायगोनल एलिमेंट्स सेम कंडीशन हमें लेनी पड़ेगी कि i is equal to your j। तो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। So we know that aij is equal to minus of aj। So aii is equal to minus of aii। For diagonal elements I is equal to your j। So 2aii is equal to 0, means aii is equal to your 0। इन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं इसके 0 के इक्वल। Now let us discuss Hermitian matrix. A square matrix A is equal to aij for complex field is said to be Hermitian if aij is equal to conjugate of aji, or otherwise we can write the definition a theta is equal to a। Theta means transpose conjugate, means transpose करके फिर conjugate लेना। तो इसका एग्जांपल है हमारे पास 2 5, इसमें क्या होता है हमारे पास 2 minus 3 minus 2 आयोटा है वैसे, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा उसमें आयोटा में चेंज हो जाएगा साइन, तो 3 plus 2 आयोटा हो जाएगा। इसे डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स a i j इज इक्वल टू a j i कॉन्जुगेट है। डायगोनल एलिमेंट्स के लिए a i i इज इक्वल टू a i i कॉन्जुगेट। दिस इज कॉन्जुगेट मींस अल्फा प्लस i, आयोटा b इज इक्वल टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा। क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स फील्ड है तो हमें पता है कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स में ऐसे लिखा जाता है अल्फा प्लस आयोटा b। So यहाँ से हमारे पास अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल, तो 2 आयोटा b इज इक्वल टू 0, मींस बीटा इज इक्वल टू 0, मींस इमेजिनरी पार्ट इज योर 0। मींस जो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास वो क्या आएंगे रियल। सो डायगोनल एलिमेंट्स आर योर रियल। और नेक्स्ट इज द टू डेफिनेशन ऑफ द Hermitian matrix are equivalent. So now first let us suppose that we have aij is equal to aji conjugate and we have to prove a is equal to a theta. Now consider a theta, उसको हमने a ट्रांसपोज कंसीडर किया था, यहाँ पे हम a theta कंसीडर करेंगे। So now consider a theta, that means ith jth element of a theta। a theta को मैं क्या लिख सकती हूँ a ट्रांसपोज a conjugate का ट्रांसपोज, that can be written as ji एलिमेंट, क्योंकि ट्रांसपोज को मैं रिमूव कर रही हूँ ऑफ ए कॉन्जुगेट। दिस कैन बी रिटन एज jith एलिमेंट ऑफ ए कॉन्जुगेट मींस aji also conjugate and this part is equal to your aij। So from here we can write this is equal to ith jth element of your a। From here ith jth element of a transpose conjugate is equal to ith jth element of a, means from here we can write a transpose conjugate is equal to a, means a theta is equal to your a। This only you have to prove। Now let us consider a theta is equal to a is equal to a theta is equal to a, and we have to prove aij is equal to aji conjugate। Now from here we can write
ith jth एलिमेंट ऑफ ए थीटा। ए थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए ट्रांसपोज देन कंजुगेट का ट्रांसपोज। सो दिस कैन बी रिटन एज j ith एलिमेंट ऑफ ए conjugate. This can be written as a j I conjugate. So ith jth element of a means a I j is equal to a j I conjugate. So this only we have to prove. The next type of matrix is skew Hermitian matrix. This is skew symmetric था, यहाँ पे क्या आ जाएगा skew Hermitian. So scale matrix of the complex field is said to be skew Hermitian if aj is equal to minus of aij। जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में हमारे पास था, वैसे यहाँ पे हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन है। सो a थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ a थीटा। तो हमारे पास इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल देख लीजिए, 3 आयोटा 0, 3 आयोटा प्लस 5, 3 आयोटा माइनस 5। तो सर एग्जांपल हमारे पास ये है। अब इसके डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो aij इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। तो यहाँ अल्फा से अल्फा जो है कैंसिल नहीं होएगा, यहाँ माइनस आएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा। सो आयोटा बीटा कैंसिल, सो 2 अल्फा इज इक्वल टू 0 मींस रियल पार्ट इज 0, means the diagonal elements can be imaginary, and if the imaginary part is 0, so it can be 0 also. So it can diagonal elements are either imaginary or 0। देखिए यहाँ पे imaginary भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है। Let us talk about the two definitions of the skew Hermitian matrix are equivalent. So there is skew. So aij is equal to aj का conjugate। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस। We have to prove that a is equal to minus a theta. So now consider the element of a theta। ठीक है, इसका एलिमेंट कंसीडर किया, that is equal to j I element of a transpose, this is equal to a j I conjugate। so a j I हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस ऑफ a I j, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ith jth element of a theta is equal to minus ith jth element of a। बस यहाँ पे माइनस से हमें रिप्लेस करना है। सिमिलरली यहाँ पे हमें दे रखा है माइनस में और यहाँ पे भी माइनस में, तो ith jth element of a is equal to minus ith jth element of a theta। तो यहाँ पे आ जाएगा रिवर्स पेन, तो a j ith एलिमेंट ऑफ ए कॉन्जुगेट, यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस एंड हियर आल्सो माइनस। अगर आपको सिमेट्रिक की आती है, आपको स्क्यू सिमेट्रिक की इक्विवेलेंस प्रूफ करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सिमिलरली अगर आपको हर्मिशियन की आती है तो स्क्यू हर्मिशियन में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। टिल देन थैंक यू। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर ऑल द एग्जांपल्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1.2।